हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we will start with the कीर्तन। अगर आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कौन है एक क्लास हो या चुप हो जाओ, अपना अपना मुंह बंद रखो। हाँ तो किचन में ही हो रही है वीडियो। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna everyone. So I would like to welcome all of you here for DYS session today. And today's session gonna be by Har Grace Nirmala Devki Mataji. Har Grace Nirmala Devki Mataji
is a teacher in Prudence by profession, and she has been working as a SME at Merit Nation, and also she has a working experience as a content writer in Jagran Josh. So today she will be enlightening us on the topic Search for Happiness. She has been practicing in Krishna consciousness since 9 years, and it is a great opportunity for all of us to learn so many things from here. So, जैसा कि मैंने आपको बताया, हरग्रीस निर्मला देवी माता जी इज अ टीचर एंड शी इज अ मैथ्स एक्सपर्ट. सो आज हमारे रिक्वेस्ट पे माता जी हमें बताएंगी कि लाइफ की जो सबसे टफेस्ट इक्वेशन है, हाउ टू सोल्व दैट इक्वेशन. और वो इक्वेशन क्या है? तो दैट इक्वेशन इज डैश प्लस लाइफ इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस. सो व्हाट इज दैट डैश? ये आज हमें पता चलेगा इस सेशन में. So I would like to welcome Her Grace Nirmala Devki Mataji to show us some path on happiness. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Am I audible? Yes or no? Yes, Mataji, Okay. you are audible. So welcome you all for this session, Search for Happiness. So I just want to congratulate all of you for spending some time, आपने अपना precious time इन sessions के लिए दिया. So first I want to congratulate you all of you कि आपने अपना precious time इसको दिया and आपको इसके अंदर बहुत कुछ जानने को मिलेगा. And the first topic is search for happiness. And then God, does God exist? And then one God or many gods? Then who am I? And then why bad things happen to good people, and then the last is science of yoga. The first topic, our topic is search for happiness. So I'm sharing the slides with all of you so that we can have a better understanding. So this is our journey of self discovery. अब हम इस journey में जानेंगे कि क्या है search for happiness, why we are searching for happiness, and in last we will end up, हम end करेंगे ये जानकर कि क्या actually में happiness कैसे मिलती है and what is actual happiness. Okay, so our slides and our totally we are based, what we are speaking is based on the teaching of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So let us pray together to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ताकि उनकी मर्जी से हम कुछ सीख सके, हम कुछ बोल सके, क्योंकि विदाउट हिज मर्सी वी कैन नॉट स्पीक. हम कुछ बोल भी नहीं सकते और कुछ समझ भी नहीं सकते. सो लेट अस प्रे टुगेदर. नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. लोगों से कनेक्ट होना है, ऐसा नहीं कि आप बता रहे हैं ऐसे बिल्कुल जैसे आप उनकी Can I बोलते हो. request you all of you to mute your mic so that कुछ disturbance ना हो हमारे slides में और हमारे जो भी हम सीख रहे हैं उसमें हमारी कोई disturbance ना हो. Can you mute yourself? Thank you so much. So our topic is search for happiness. हर कोई इस दुनिया में, everyone is searching for something. Happiness कुछ भी पाने के लिए. हरे कृष्णा माता जी, आपका माइक म्यूट हो गया है. Now is it okay? यस माता जी. तो slides visible है आपको? यस माता जी. Thank you much. So everyone is searching for happiness in this world. हर कोई happiness की तलाश में है. बेशक वो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक. Everyone is searching for happiness. हर कोई चाहता है कि happiness मिले. यहाँ तक कि हम अपनी पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम अच्छे से बन के, हम बड़े बच्चे मतलब बड़े बनकर उसके बाद हम अच्छे पैसे कमा सके and we get happiness. Chatting, yes, it's okay. I'm
Now, is it visible to all? Yes. Yes, Mataji. Okay. So now we are beginning our journey for happiness, search for happiness. Okay. So there are different levels of happiness. Actually, chat में बार बार देख नहीं पाती. Okay. Thank you. So there are different degrees of happiness, different levels of happiness. कैसे कैसे हम अपनी happiness को feel करते हैं, कैसे कैसे हम उस चीज को मतलब क्या होता है happiness actually, what does it mean by happiness, we will get to know from these presentations. Okay. So first is our physical happiness. Physical happiness means हम कुछ भी खाते हैं या we go to restaurants, we go to मतलब parties, हम क्या करते हैं वहाँ पे eat करते हैं, drink and marry and we enjoy that because we are getting a physical happiness from that. कुछ भी मम्मी ने अच्छा बनाया उससे क्या होगा, हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है. We are, so this is basically physical happiness. That is happiness we are getting for this body. So next is mental happiness. हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ, जैसे किसी को सिंगिंग करने का बहुत शौक होता है, या किसी को हारमोनियम बजाने का, या तबला बजाने का, या मृदंगा बजाने का, या पेंटिंग करने का, या आर्ट्स में कुछ, या पोएट्री करते हैं सब लोग. कुछ ना कुछ हमारी कुछ ऐसे शौक होते हैं जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है. सो दीज आर म्यूजिक, आर्ट्स, पोएट्री, या स्पोर्ट्स में हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं या लव करते हैं किसी ना किसी से. तो दीज आर एक्चुअली बेसिकली sorry, I'm not able to see chats again and again. Okay, you are taking attendance. So these are basically mental happiness. जो हमें mentally हमें happiness मिलती है अपनी ऐसी कुछ चीजों को करने से जिससे हमारी mental we get happiness. Next is इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस. इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस मींस जिसमें हम अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं, डिबेट्स करते हैं, कोई भी टॉपिक्स पे लेकर हम डिबेट्स करना शुरू कर देते हैं, या हम ऐसी कुछ गेम्स खेलते हैं जैसे कि हम चेस खेलते हैं, हम ऐसी गेम्स खेलते हैं जिसमें हमारा सुडोकू खेलते हैं. क्यों खेलते हैं? बिकॉज वी गेट हैप्पीनेस फ्रॉम दैट, बिकॉज उसमें हम अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द ब्रेन. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस. सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस. हर किसी की हैप्पीनेस अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है. This is our third kind of happiness, that is intellectual happiness. And the last one is spiritual happiness. You can see many devotees, they are enjoying so much, they are happy. Why? Because they are getting spiritual happiness. उनको spiritual happiness मिल रही है. Like we can see, we pray, कोई योगा करता है, सुबह सुबह उठ जाता है. इतना सुबह सुबह उठना जो है ना, वो एक तपस्या है हम लोगों के लिए, क्योंकि अपनी जो सुबह की नींद को खराब करना, जैसे क्या होता है कि आपकी जो सबसे ज्यादा आपको नींद आती है ना, वो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो नींद होती है ना, जो हमारी स्लीपिंग टाइम होता है, उसमें क्या हम बहुत अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं. लेकिन क्या होता है, कई लोग उठते हैं प्रे करने के लिए, योगा करने के लिए, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, बिकॉज दे आर डिराइविंग सम हैप्पीनेस फ्रॉम दैट. उनको वहां से कुछ हैप्पीनेस मिल रही है. हर कोई कुछ ना कुछ तपस्या कर रहा है, कुछ ना कुछ ऑस्टेरिटी कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको वहां से हैप्पीनेस मिल रही है. वरना इतने जो भक्त हैं, आप किसी को भी देखते हैं, वो इतनी ज्यादा ऑस्टेरिटी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, जैसे आज एकादशी का व्रत है, तो वो इतना क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम दैट. सो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, बच्चे छोटे से छोटे बच्चों को लेकर, दे आर गेटिंग हैप्पीनेस इन प्लेइंग. वो अपने प्लेइंग में हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही जो मम्मी है वो हैप्पीनेस ढूंढ रही है अपने बच्चों को सर्व करने में. तो हर किसी की हैप्पीनेस की जो डिग्री है, जो लेवल है, वो अलग अलग होता है. So we have discussed our 4 happiness stages, that is physical happiness, mental happiness, and intellectual happiness and spiritual happiness. So now तो हम देख सकते हैं कि we find happiness in different activities. हम कैसी कैसी एक्टिविटीज में हमें हैप्पीनेस मिलती है. स्पोर्ट्स में, हम स्पोर्ट्स में अपने आप को बहुत, yes, raised hand, yes, you can speak. If you have raised, Jyotsna, you have raised your hand, you want to speak something, then you can. नहीं बात है जी, वो Chat पे आपने कुछ दिया है? नहीं. So
we find happiness in different activities like sports, या कोई आपने देखा होगा इंटॉक्सिकेशन बहुत से लोग अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं या कुछ भी ऐसा लेते हैं जैसे ड्रग्स भी लेते हैं, तो दे फाइंड हैप्पीनेस इन दैट एक्टिविटी, उनको उस एक्टिविटी से हैप्पीनेस मिलती है। तो मैंने बताया था पहले भी कि जैसे हर कोई, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, किसी ना किसी चीज को लेके दे आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, बट उनकी जो लेवल है और उनका जो एक्टिविटीज है सबकी अलग अलग होती हैं। तो बट in last we will find what is actually means by happiness. Rave parties में जाके बहुत enjoy करते हैं, डांस करते हैं because they are getting happiness from that. Next is daredevil acts. आपने देखा होगा कि कभी कभार बहुत सारे लड़के जो भी हैं ऐसे रात को जाते हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स करते हैं कि आपको मोटर बाइक के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये सब मुझे देख रहे हैं, सो उससे क्या उनको हैप्पीनेस मिलती है। कैसे they are doing daredevil acts to get happiness from that. क्रेजी फैशन, जैसा कुछ फैशन आता है लगता है हमें यार ये कैसा फैशन है, किसी की आजकल फैशन जैसे आया हुआ है कि एक जो आपकी एक ट्राउजर की एक जो पैंट का जो कलर है, मतलब एक साइड का अलग कलर और एक साइड का अलग कलर, तो सबकी क्रेजी फैशंस जैसे भी चलते हैं। सो व्हाई दे आर डूइंग, बिकॉज दे आर गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम दैट। सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा तो मुझे भी शायद हैप्पीनेस मिलेगा। तो चीयर लीडिंग अवर आइडल्स, तो आपने देखा होगा कि आपने कभी भी किसी क्रिकेट मैच में देखते हैं बहुत सारे तो सब चीयर लीडिंग करते हैं, वहां पे अपने अपने मतलब पेज पे इंडिया का मतलब फ्लैग लगा लेते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं जिससे वो चीयर लीडिंग करते हैं, ये इंडिया इंडिया इंडिया, बिकॉज व्हाई दे आर डूइंग, बिकॉज दे आर गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम दैट। सो वी कैन सी दैट एवरीवन इज फाइंडिंग हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, बट देयर एक्टिविटीज आर डिफरेंट। हर किसी को अपनी अलग अलग चीजों में हैप्पीनेस मिलती है। तो हैप्पीनेस मीन्स क्या, हैप्पीनेस का एक्चुअली मीन्स क्या है? दैट मीन्स इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज। किस चीज की? हम चाहते हैं कि हमें और अच्छा खाना मिले, तो इम्प्रूव फैसिलिटीज फॉर ईटिंग, अलग अलग तरह का खाना चाहिए है ना, ईटिंग। इम्प्रूव फैसिलिटीज फॉर स्लीपिंग, बहुत अच्छा घर चाहिए, बहुत अच्छा बेड चाहिए। क्यों? बिकॉज उससे मुझे हैप्पीनेस मिलती है, मुझे आराम से स्लीप आता है। Dating, they make relationships, हमें boyfriend girlfriend, they find happiness in this, everyone is finding happiness in this. Okay, so improve facilities for happiness. And defending means अपने आप को डिफेंड करना, कि अगर आपको कोई इम्प्रूव फैसिलिटी, हैप्पीनेस क्या है कि जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे वॉर्स होते हैं, हम अपने जो हमारे जो वेपन्स हैं हम उनको और इम्प्रूव करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे जो वेपन्स हैं वो भी हम इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि हम अपने आप को डिफेंड कर सके और अपनी हमारी हैप्पीनेस में कुछ कमी ना आए। So happiness actually means improved facilities of eating, sleeping, mating and defending. But animals के पास भी friends होते हैं। Yes, animals also have friends. Animals also have fun. वो भी बहुत fun करते हैं, तो क्या उनको भी happiness मिल रही है? Animals also have a family life. उनको भी family life है, उनके पास भी। They also find happiness. Okay, they also find happiness in eating. वो भी खाते हैं हमारी तरह, eating. Sleeping, they also sleep like us. Procreation means they produce their young ones. वो अपना young ones को produce करते हैं. We also defending, जब कुछ लड़ाई हो जाती है किसी में तो they also defend like us also. So we can see that what is the difference between animals and human beings? तो क्या difference है? They also get eating, they also eat, we also eat. But ये हो सकता है कि हाँ वो कहीं भी खा लेते हैं, लेकिन हम शायद रेस्टोरेंट्स में खाते हैं या हमारी मम्मी हमारे लिए अलग अलग तरह की चीजें बनाती हैं तो हम वो खाते हैं। And second is they also sleep. वो कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी रोड पे सो जाते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छी जगह पे सोते हैं, हम आराम से मजे से सोते हैं, हम अपने घरों में सोते हैं, हमारे एसी लगा के सोते हैं, या हमारे पास बहुत कंफर्टेबल फैसिलिटीज होती है जिससे हम we also sleep, they also sleep, है ना। And the next is
they also mate. We make relationships. हम अपने relationships बनाते हैं and we mate. हम लोग mating करते हैं for co-creation of child. They also वो भी क्या करते हैं, उनके पास और improved facilities हैं. They also mate. आप देखेंगे कि pigeon को अगर आप देखते हैं ना, तो pigeon एक दिन में कितनी बार mating करता है. They to create young ones, ठीक है, तो उनके पास और ज्यादा मीटिंग करते हैं. तो what is the difference? We also mate and they also mate. Defending, हम भी डिफेंड करते हैं. अगर हमें कोई कुछ मारता है तो we also defend, they also defend. What is basically the difference? So, I just want to tell you one of the story I heard in one of the lectures. एक बार अलेक्जेंडर, आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सुना होगा. अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको क्यों बोलते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट? वो क्या करता था? वो कॉन्कर करता था. अलग अलग कंट्रीज के पास आकर वो कॉन्कर कर लेता था बहुत बड़े लेवल पे. उसके साथ बहुत सारी आर्मी चलती थी और वो क्या करता था, कॉन्कर करता था अलग अलग कंट्रीज को और अपने अंडर कर लेता था. तो एक दिन उसने अपनी एक जो टीम के साथ अपने आया वो, और उसने कॉन्कर करने के लिए वो एक रिवर के पास उन लोगों ने अपना कैंप लगाया. तो जब वो कैंप लगा के बैठे थे तो वो रात को सो रहे थे. तो एक थीफ आया. तो जब थीफ आया तो उसने क्या किया, वो चोरी करना शुरू करी उसके कैंप में. लेकिन आपको पता है वो जब चोरी कर रहा था तो वो पकड़ा गया रेड हैंडेड. ही कॉट रेड हैंडेड. एंड देन वो अलेक्जेंडर के पास उसको लेके जाया गया. और जब उसको उसके पास लेके जाया गया तो अलेक्जेंडर आस्क्ड हिम, व्हाई यू वर आप थीफ, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, आप चोरी क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर स्टीलिंग? तो उसने बोला कि क्यों ना करूं. तो उन्होंने बोला क्यों, आप यहाँ से हमारे कैंप से स्टीलिंग क्यों करो? तो बोल रहे कि आप भी तो यही काम करते हो, आप भी तो यही बहुत बड़े लेवल पे करते हो, आप बड़ी बड़ी कंट्रीज को अपने अंडर कॉन्कर कर लेते हो. और मेरा मैं क्या, Yes, that's why. So you won't get into trouble with that. माता जी, Remember, someone wants to speak anything. use that one hard. Unmute. Can you unmute yourself for some time? Or you have some chat option. Carefully sussing. नहीं तुम करते भी नहीं रहोगे. माता जी, can you mute yourself for some time? Thank you so much. So Alexander the Great ने उससे पूछा, why you are stealing? तो उसने बोला कि आप भी ऐसा ही करते हो. You are also stealing, I am also stealing. But मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटे लेवल पे कर रहा हूँ और आप बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो. You are also a thief, I am also a thief, but you are a thief बहुत बड़े लेवल पे. तो you are said to be, आपको बोला जाता है Alexander the Great. तो इस तरीके से हम भी वही सब चीजें कर रहे हैं, mating, defending, eating, जस्ट लाइक जो थीफ कर रहा था. बट मतलब एनिमल्स जो है वो भी वही कर रहे हैं जैसे वो थीफ कर रहा था, लेकिन हम थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे कर रहे हैं वही सब चीजें. जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट उसको बोला था, तो इस तरीके से हमें भी बोल सकते हैं ना, एनिमल्स द ग्रेट, है ना. वी आर टू लेग्ड, हम क्या है, टू लेग्ड है, सोफिस्टिकेटेड डिलक्स एडिशन ऑफ एनिमल्स है. अगर हम यही चीजें कर रहे हैं सेम टू सेम जस्ट लाइक एनिमल्स आर डूइंग. सो हमें महाभारत का एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम. मतलब इसका मतलब है कि आहार, ईटिंग, निद्रा, स्लीपिंग, भय दैट मींस डरना, डिफेंड करता है अपने आप को. मैथुनम, मैथुनम मींस मेटिंग. वो क्या है, समानम एतत् पशुभिः नराणाम. तो क्या है, ये समान है किसमें, किसमें समान है, पशु में और नर में, ये सब सेम है. बट क्या, व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली, व्हाट इज द डिफरेंस between us and animals? The difference is dharmo hi tesham adhiko vishesho dharmena hina pashubi saman. That means the thing that is the difference that is different from animals is the dharmo hi tesham, the dharma, that we are given the intelligence, we can discriminate. हमारे पास एक इंटेलिजेंस, हमें हायर इंटेलिजेंस दी गई है, that we can discriminate what is good for us, what is not good for us, what is valuable for us, what is not valuable for us. So that means that we are given the higher intelligence. The activities of eating, sleeping, mating, and defending are common in animals and human beings. The human beings are considered superior only when they inquire about the absolute truth. Otherwise they are considered as good as animals. So वो क्या है, sophisticated, polished animals है. If we are doing the same thing just like that animals are doing. So
what is the difference we have learned? Animals act by instinct. Instinct मतलब क्या होता है कि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगर उनको कोई मतलब कुछ कहेगा कि उनको कुछ मतलब कोई कुछ कहेगा तो वो एकदम से क्या भौंकेंगे, बट ह्यूमन बींग्स एंडोव्ड विद फ्री विल। हमें कुछ कहे, कोई कुछ भी कहेगा तो हमारे पास फ्री विल है, हम उसको कुछ भी कहें, हम या तो गुस्सा करें या तो उसको माफ कर दें, है ना। तो इस तरीके से एनिमल्स एक्ट बाय इंस्टिंक्ट बट ह्यूमन बींग्स इज एंडोव्ड विद फ्री विल। वी आर बीन गिफ्टेड, हमें गिफ्ट दिया है। किस चीज का गिफ्ट मिला है हमें? फ्री विल का। एक जैसे कि आप भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 7th श्लोक में आप देखते हैं तो अर्जुन जो है वो बोलते हैं कार्पण्य दोषो अपरहत स्वभाव। तो वो उसमें बता रहे हैं कि कार्पण्य दोषो दैट मीन्स कृपना। कृपना मीन्स होता है माइजर पर्सन। माइजर मतलब कंजूस। तो कंजूस के पास क्या होता है? सब कुछ है उसके पास, आपने देखा होगा उसके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या करता है वो बचा के रखता है, बचा के रखता है। सो जस्ट लाइक दैट ओनली if we are being gifted this human form of life, हमें ये human form of life मिली है and we are not utilizing it in the proper way, so we are just like a कृपना। हम एक कृपन की तरह है जो like a miser person। miser person मतलब कंजूस है हम। कंजूस क्यों है? क्योंकि वी आर बीइंग गिफ्टेड। आपके पास एक इतना बड़ा वैल्यूएबल गिफ्ट है ह्यूमन लाइफ, दैट यू आर बीइंग गिवन अ फ्री विल टू डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे रास्ते पे जाना है कैसे नहीं। बट स्टिल इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, तो हम एक कंजूस है जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो बैगर की तरह रहता है, वो एक गरीब की तरह रहता है, उसको बचा बचा के रखता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास सब कुछ है, ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग, सो वी हैव टू यूटिलाइज इट फुली। We have to understand why discriminate, हमें why inquire करना चाहिए। We will move on to our next slide to know about this. So, human beings have been gifted by higher intelligence. हमें एक higher intelligence मिली है to find out the cause of suffering. एक चीज आपको बताना चाहूंगी, ultimately we have to inquire for these 3 things. We can inquire about अत्यधिक दुख निवृत्ति, अत्यधिक सुख प्रवृत्ति, to find out the cause of suffering. हम जान सकते हैं कि यार इतनी परेशानी क्यों आती है, to find out the cause, क्यों ऐसे क्यों, find out the purpose of life, क्या destination क्या है life, why we are given this human form of life। हर कोई मरता है, उसके बाद कहाँ चला जाता है? सब आते हैं और हम ऐसी स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, है ना। मतलब क्या मतलब है फिर, हम क्यों आते हैं? तो हमारा कोई एम नहीं है लाइफ का। सो ह्यूमन बीइंग आर गिफ्टेड विद दिस हायर इंटेलिजेंस। हमें एक हायर इंटेलिजेंस दिया है, वी आर बीइंग गिफ्टेड एंड वी हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली and to get eternal happiness. So these 3 are the main things we are being gifted. We can find out the cause of suffering, we can inquire the purpose of life, and to get eternal happiness. So this human form of life is really very valuable, so we have to utilize it fully. So happiness means to be always free from problems. कभी भी आप देखेंगे कि happiness, what does it mean by happiness? कभी भी आपके पास प्रॉब्लम नहीं होती, हमें थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिलती है ना, कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर वेपर सब खत्म, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जिंदगी अपनी तरीके से जीना है। सो वी गेट हैप्पीनेस, हमें उससे क्या मिलती है? हैप्पीनेस मिलती है। सो दैट मीन्स हैप्पीनेस मीन्स टू बी ऑलवेज फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स क्या होता है? जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे कभी बहुत बारिश आती है, ठीक है, बारिश आई और आप छाते वाले के पास गए, अम्ब्रेला वाले के पास गए एंड यू से आपने बोला कि भैया अम्ब्रेला दे दो, तो वो क्या बोलेगा? मैं तो चाहता हूँ कि पूरे साल ऐसे बारिश होती रहे। उन्होंने बोला क्यों, ऐसा क्यों चाहते हो? ताकि ये मेरा जो काम है, धंधा है, मेरा बिजनेस है, ये बढ़ता रहे, इट विल इंक्रीज। तो उसके लिए क्या है? हैप्पीनेस क्या है? बारिश होती रहे। लेकिन जब आप बाहर देखेंगे, स्ट्रीट पे जो लोग, उनका घर ही वहाँ पे जमीन पे है, जहाँ पे वो फुटपाथ पे सोते हैं, उनके लिए क्या ये प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रेन आ रही है, वो कहाँ पे जाएंगे? कभी अपना घर यहाँ पे रख रहे हैं, कभी यहाँ पे रख रहे हैं। तो इसका मतलब this actually problems are relative मतलब जो एक किसी इंसान के लिए प्रॉब्लम है, तो दूसरी के लिए खुशी है। तो क्या वो एक्चुअली में प्रॉब्लम है?
I just want to ask all of you, if you can write in chat, what does it mean by problem? Problem आपके लिए problem क्या है? ठीक है, आप क्या समझते हो? किसको problem समझते हो? क्या है आपकी जिंदगी में problem? So we will discuss. Does it actually a problem that is common to all? So can you write something? What is problem for you? Problem क्या है? If anyone can write in chat, I will see the chat. No one wants to write. Anyone can tell what is problem for you. Just like I'm giving you an example. मैं आपको example देती हूँ. Say papers are problem for me. Exams are problem for me. So you have to tell what is problem for you. आपके लिए क्या है problem? Okay. One chat is there. When the situation is not as per our wish, yes, Tanushri, very good. When the situation, okay, to make friends, I have problems. So Srisha is saying that to make friends, she has problems. So Narika is saying जो भी हमारे situation के according ना हो. Very nice. Okay. Anyone other want to say something? कोई और बताना चाहेगा कि what does problem mean to you? No one is replying, so I'm moving. So basically, we can see that a problem आपने बोला कि जो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना हो, तो शायद हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जो हमें अच्छा ना लगे वो हमारे लिए प्रॉब्लम है. वेरी नाइस. सो ऑल ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट. जो हमें अच्छा ना लगे वो हमारे लिए प्रॉब्लम है. बट हो सकता है कि जो हमें अच्छा ना लगे वो दूसरे को अच्छा लगे. तो प्रॉब्लम बेसिकली मीन्स, नाउ वी विल मूव ऑन. नाउ वन चेक नाउ. हमारे देखने का नजरिया कि प्रॉब्लम की तरह देखें या आगे बढ़ने की तरह. वेरी नाइस. When someone ignores us and we think that we are ignoring, they are ignoring us, it's problem for us, of course. Yes. So there are different problems of everyone. हर किसी की अपनी अलग-अलग problems है. We can see that हमें लगता है कि हम आगे अभी slides में देखेंगे that they are very happy, but they are not. So problems actually basically means क्या मतलब है? That is common to all. No one wants it and no one can avoid it. Problem basically मतलब होता है जो सबके लिए common हो. That prevented us from moving forward. Yes, of course, that prevented us from moving forward. So you all have अपने सबने बताया कि what does problem means to you. Okay. But now we are going to discuss what does problem actually mean that is common to all. Problem क्या है? सबके लिए है, common है. So that is problem. जैसे कोरोना वायरस, this is a problem, है ना? क्यों? Because this is common to all. हरे कृष्ण, please हरे कृष्ण. So problem means जैसे कोरोना वायरस, that is common to all. हर कोई इसको भुगत रहा है, इसको मतलब इसके साथ no one wants it. कोई चाहता है क्या कोरोना वायरस? सब चाहते हैं. The day when the day will come when it will go away and हमारे को न्यूज़ मिलेगी कि कोरोना चला गया, तो हम कितना खुश होंगे that मास्क उतार के हम लोग घूम सकेंगे. And no one can avoid it. हम नहीं चाहते कि हमारे पास आए, but still we cannot avoid it. So problem basically means that is common to all and no one wants it and no one can avoid it. So these are the basic. So real problems of are. अब we will discuss the real problems of life. First problem, the real problem is birth. और birth अपने साथ 3 और problems को लेकर आता है. आप सोचते हैं birth, एक बच्चे का जन्म होता है तो कितनी खुशी होती है. घर में बच्चा आया है, बहुत खुश होते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं. लेकिन आपको जैसे अगर आपको एक sack, आपने देखा है कभी एक sack means बोरी, आप उस बोरी में आपको उल्टा ऐसे थोड़े दिनों के लिए मैंने बोला, थोड़ी देर के लिए, सॉरी, थोड़ी देर के लिए हम उल्टे हो जाते हैं उसके अंदर और उसके ऊपर से आपके थोड़े से मतलब ऐसे नमक मिर्च भी डाले जा रही है और मतलब कुछ, और आपके ऊपर कीड़े कॉकरोच डाले जा रहे हैं बहुत, मतलब तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे कि प्लीज मुझे इस चीज से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो. क्यों? इसी तरीके से when a birth happens, एक बच्चा जो होता है छोटा सा एक माँ के गर्भ में, in the womb of mother, तो
क्या होता है, वो एक छोटा सा उल्टा उल्टा अपनी मम्मा के गर्भ में होता है, इन द वॉर्म ऑफ हर मदर। और वो क्या है, उसके ऊपर जैसे मम्मी खाती है, जब उसकी 3 या 4 मंथ्स का होता है, उसकी बॉडी पे अभी वो नहीं आई होती, क्या कहते हैं, स्किन नहीं आई होती। तो स्किन नहीं आई होती तो बॉडी पे उसको जैसे जो भी मम्मी खाती है, नमक मिर्च ज्यादा खाती है, खट्टा खाती है, मम्मी का तो मन कर रहा होता है कि कुछ खट्टा खाए, लेकिन उस बच्चे को वो चीज लगती है, क्योंकि आपकी कभी भी चोट लगी होगी, उस पर नमक छिड़क के देखो तो कितनी दर्द होगी, है ना। इसी तरीके से उस बच्चे को वो चीज लगती है। और वॉर्म्स होते हैं चारों तरफ, हमारे हमारे अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या छोटे छोटे वैसे और लिविंग एंटिटीज होते हैं हमारे अंदर, तो वो बच्चे को चारों तरफ से घेरे होते हैं। तो ये बच्चा जो है वो 9 मंथ के बाद जब आता है तो वो क्या हंसते हुए आता है, वाह मैं आ गया, ऐसा नहीं। तो वो जब भी आता है आप देखेंगे कि वो रोता हुआ आता है, क्योंकि वो एक इस तरीके से जेल से, केज से निकल के आया है, जहां से वो निकल के एकदम से रोने लग जाता है ना। और अगर उसको वो रोता नहीं है तो उसको रुलाया भी जाता है, उसको पिटाई करी जाती है, इसको पिटाई नहीं मतलब ऐसे मार के देखा जाता है कि क्या वो सही है। एक्चुअली में सभी बच्चे रोते हुए आते हैं। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लाइफ कि हम हमें हर किसी को बार बार बर्थ से निकलना पड़ता है, बर्थ डेथ से निकलना पड़ता है। एक्चुअली दीज आर रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बिकॉज दिस इज कॉमन टू ऑल, नो वन कैन अवॉइड इट, एंड it no one can avoid it, and it no one can avoid it, and sorry मैं थोड़ा आगे आ गई। हाँ, so no one can avoid it and no one wants it. Yeah, so this is the problem of life, that is birth. Now और birth जब भी आता है अपने साथ 3 चीजें और लेके आता है साथ में, गिफ्ट, एज अ गिफ्ट। डेथ भी लेके आता है साथ में, जिसका बर्थ हुआ है ऑफ कोर्स भगवद गीता में भी बताते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य आएगी। वन थिंग इज सर्टेन, सबसे ज्यादा आपको हमेशा भूलना, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वन थिंग इज सर्टेन, सर्टेन मीन्स जरूरी है, पक्का, जो निश्चय ही, कुछ भी इस दुनिया में जो चीज निश्चय है वो है डेथ। डेथ कैन कम एट एनी टाइम, कभी भी आ सकती है। तो वो प्रॉब्लम क्यों है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हम तो मर जाएंगे, डेथ आ जाएगी। प्रॉब्लम क्यों है, because it has been said in scriptures that when death comes, जब डेथ आती है तो हमें इतना पेन होता है, उस सोल को उस बॉडी से निकलने में इतना पेन होता है कि लाइक 36,000 बिच्छू जो होते हैं वो उसको डंक बाइट करते हैं उस समय, और उसको इतना मतलब दर्द होता है, इसलिए उसको आप देखोगे कॉन्शियसनेस नहीं रहती है एट टाइम ऑफ डेथ। जो मतलब नॉर्मल जिसकी लाइफ है उसको बिल्कुल किसी को भी कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, ऐसे एकदम से शरीर चला जाता है। So this is a problem of life. And the next is disease. Disease, कोई भी चाहता है कि disease हो। I was hearing a lecture, मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि एक बार एक प्रभु जी थे, वो ऐसे हॉस्पिटल में गए, और उस हॉस्पिटल में एकदम से वो कुछ बता रहे थे किसी को, ताकि सब लोग जहाँ पे हॉस्पिटल में मतलब बहुत बीमार होते हैं, तो सब लोग को थोड़ा सा मतलब हैप्पीनेस देने के लिए थोड़े समय के लिए वो कुछ गए वहाँ पे, हरे कृष्णा कीर्तन किया, ऐसा कुछ किया। उन्होंने देखा कि एकदम से उनको एक आवाज आई, ऐसे ठा कुछ गिरा। उन्होंने एकदम से पीछे देखा तो एक देखा कि एक मतलब इंसान था, तो वो बहुत गुस्से में उसने नेल कटर होता है ना, नेल कटर को ऐसे फेंक दिया। तो नेल कटर फेंका तो उनके पास जब भी प्रभु जी गए तो उन्होंने बोला कि आपने नेल कटर को ऐसा फेंका क्यों। तो बोल रहे कि मेरे को सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं बोला था, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें क्या है, मैं अपने टो के नेल को ना उसको कट नहीं कर पाता हूँ, मेरी बॉडी इतनी वीक हो गई है कि मैं अपने टो के नेल को भी कट नहीं कर पाऊँ। देन आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया उस चीज से, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो उसने उन्होंने नेल कटर को ऐसे फेंका। डिजीज लाइक कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस कोई नहीं चाहता, नो वन वांट्स इट, बट स्टिल वो है। जिसको कोरोना वायरस हो जाता है 14 डेज के लिए क्वारंटाइन हो जाता है, दे डोंट वांट इट। कितना लोनलीनेस, कितनी मतलब परेशानी है, बट स्टिल इट कैन कम, वी कैन नॉट अवॉइड इट। जिसके पास आना चाहती है वो आ जाती है, ऐसा नहीं कि वो चुन कर आएगी, वो चूज करेगी कि नहीं मैं आपके पास आऊंगी, आपके पास नहीं, वी कैन नॉट अवॉइड इट। एंड द नेक्स्ट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज जो होती है इतनी मतलब ऐसी चीज होती है कि मतलब आपकी जो सारी बॉडी पार्ट्स होते हैं ना वो क्या है, धीरे 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 धीरे
अब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब मतलब यू आर जस्ट गोइंग टू डेथ के पास अब जा रहे हैं, ठीक है। ओल्ड एज में आप क्या है कि बहुत सारे फिजिकली तो चलो ठीक है, फिजिकली आप बहुत बीमार हो जाते हैं, बट मेंटली दे नीड सपोर्ट। मेंटली वो लव चाहते हैं, हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई हैप्पीनेस चाहते हैं ओल्ड एज में भी, बट स्टिल इट्स अ रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, बिकॉज क्योंकि एक बूढ़े बंदे को, बूढ़े इंसान को ज्यादा कोई पूछता ही नहीं है ना। और पूछते भी हैं तो क्या होता है, फिजिकली दे आर नॉट वेल, उनकी मतलब वो वेलनेस नहीं होती। तो इसी वजह से दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। अगर ये 4 प्रॉब्लम्स होती तो बहुत अच्छा था, बस इतनी ही प्रॉब्लम्स में हम खुश है कि चलो ठीक है, बर्थ अभी तो हो गया हमारा, डेथ तो बहुत दूर है, डिजीज अभी तो नहीं आई, ओल्ड एज अभी तो नहीं आई, तो वी आर हैप्पी। बट ऐसा नहीं, वी आर नॉट हैप्पी, बिकॉज इसके साथ चार चार चीजों के साथ ऐसे 3 चीजें और हैं प्रॉब्लम्स जो कि साथ में फ्री में आती हैं। दैट इज आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मीन्स मिजरीज ड्यू टू बॉडी एंड माइंड। माइंड और बॉडी से जो हमें मिजरीज मिलती है, एक बहुत अच्छी बात आपको पता है कि मैं बताना चाहूंगी आप सबको कि टुडे द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, आपने देखा होगा कि जैसे सुशांत सिंह था, है ना, सुशांत सिंह राजपूत, he committed suicide. Why? Because mentally he was ill. Mentally he was not stressed था, टेंशन था, जो भी था। आपने देखा होगा तेरा सुसाइड रेट्स बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज हमारी बहुत कंट्रीज बहुत इम्प्रोवाइज हो गए हैं, बहुत बढ़ गई है, अच्छे से टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वी आर कंफर्टेबल, बट स्टिल miseries come from body and mind. One thing is just I want to say that mind has a tremendous influence. Either it will make your life or either it will break your life. या तो ये आपकी लाइफ को it will make your life or either it will break your life. भगवद गीता में भगवान बताते हैं, बंधुरात्मा मनस्तस्य येन मेवात्मना जिज्ञासः। इसमें बताते हैं कि जो माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और माइंड कैन बी योर वर्स्ट एनिमी, ठीक है। तो दैट्स लाइक पोटेंसी ऑफ माइंड क्या है कि यू कैन हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है, वी आर हैप्पी, बट फिर भी मिजरेबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव नथिंग एंड यू आर ब्लिसफुल। आपने देखा होगा कई बच्चे, उनके पास कुछ भी नहीं है, दे आर घूम रहे हैं, खुश है। सो बट स्टिल आप देखते होंगे कई बच्चे जो मतलब सब कुछ है उनके पास, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो हमारी जो मतलब आध्यात्मिक क्लेश मीन्स जो मिजरीज हमें बॉडी और माइंड से आती है। माइंड हमारे को टेंशन में रखता है या एंग्जाइटीज में रखता है, हम पेपर की एंग्जाइटी और कॉलेज में मतलब अच्छे नंबर लाने की एंग्जाइटी, अपनी अच्छी प्रेस्टीज हो उसकी एंग्जाइटीज रहती हैं, उसके बाद आफ्टर कॉलेज अच्छी जॉब की एंग्जाइटी। तो ये हमारी जो एंग्जाइटीज हैं, टेंशन है, हमेशा हमारे माइंड को घेरते रखती है। हमें लगता है कि अरे मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी, बट स्टिल जो माइंड है उसकी पोटेंसी ऐसी है कि वो इस तरीके से हमें दिखाता है कि वो हमें शो करता है कि जो चीज हमें हमारे पास नहीं है ना, उसको हमारे को दिखाने की कोशिश करता है हमेशा हमेशा हमेशा। तो either it will make your life or either it will break your life. It is a tremendous इसका influence है। तो the next is आदि भौतिक क्लेश। आदि, what does it mean by आदि भौतिक क्लेश? Means misery due to other living entities. कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर ये मेरा ये बॉस मेरी लाइफ में ना होता ना, ये बॉस, तो मेरी लाइफ का बहुत खुश हो जाती, मैं मतलब बहुत खुश होती अगर ये बॉस ना होता, या ये मेरे जो घर के नेबर है ना, ये हमेशा मुझे परेशान करती रहती है, ये ना होती ना तो मेरी लाइफ वुड बी हेवन, मेरी लाइफ बहुत स्वर्ग की तरह होती। बट दिस इज गारंटी, अगर आप उनको भी अपनी लाइफ से निकाल के देखेंगे ना, निकल जाएंगे, यू आर चेंज योर लाइफ, बट स्टिल कोई और दो तीन और लोग आ जाएंगे ऐसे जो आपको परेशान करेंगे। मिसयूज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज में सिर्फ लोग ही नहीं है, ह्यूमंस ही नहीं है। कभी कभार जैसे हमें देखते हैं कि चीजों से मॉस्किटो है, ठीक है, अब हम सोए हुए हैं, हम आराम से सोए हुए हैं, लेकिन स्टिल क्या है, मॉस्किटो आई है। आई कैन कभी कभार हमें डर लगता है अपनी ऐसे एनिमल्स से जो हमें डरा देते हैं, जैसे कि लाइक आई कैन पर्सनली टेल यू वन एग्जांपल ऑफ माइन। This is not a example to be given in this, ऐसा कुछ suitable example नहीं है, but still जैसे कि I have a fear from lizard, मुझे lizard से बहुत डर लगता है। And I was in वृंदावन, मैं वृंदावन में गई और मैंने देखा कि रूम में lizard है। And I was planning, मैं बिल्कुल प्लान था कि सुबह उठकर आराम से
3 बजे 3:30 बजे उठ जाऊंगी और जाऊंगी मंगला आरती में जाऊंगी या कुछ भी मतलब वृंदावन में दर्शन करने के लिए जाऊंगी। बट रात को देखा कि पर एक लिजार्ड है और वो ऐसे ऐसे घूम रही है। फ्रेंकली स्पीकिंग, I was not able to sleep for the whole night. But I did. One of my friend and me, हम लोग बाहर गए एंड सीढ़ियों पे हमने जाके सोचा कि हम सीढ़ियों पे सो जाएंगे और हम सोए नहीं पूरी रात। तो दिस इज आदि भौतिक क्लेश, मतलब बाय अदर लिविंग एंटिटीज, बट ये हर किसी को अलग अलग फियर है। तो ये मेरा एक फियर था बट आई डिस्कस। सो मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज, जैसे मस्किटोज है या कुछ भी है जो हमें दूसरे लिविंग एंटिटीज से मिलता है, दैट इज कॉल्ड आदि भौतिक क्लेश। तो नेक्स्ट इज, जैसे अब आप ये सोचेंगे कि आदि हमें अदर लिविंग एंटिटीज, हाउ मेनी लिविंग एंटिटीज आर टोटल इन देयर टोटल, आपको पता है 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ है। टोटल 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ है। आप देखेंगे अगर कि जैसे हमें तो कितने दिखते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 100 जानते होंगे, कॉकरोच हो गया, लिजर्ड हो गई, बट if you read in scripture there are 84 lakh species of life। ऐसे वाटर की जो स्पीशीज हैं अगर आप काउंट करेंगे तो हम वी कैन नॉट काउंट। so it has been given in scripture that there are 84 lakh species of life। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें मिसरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज मिलती रहती है। And the next is, the last one is Adi Devi Klesh. Adi Devi Klesh means the miseries caused due to natural calamities. Natural calamities, we don't want earthquake. हम नहीं चाहते कि earthquake आ जाए, हम नहीं चाहते flood आ जाए। अभी आपने देखा होगा कितने सारे earthquakes आए जब कोरोना का टाइम बीच में लॉकडाउन था, तो one by one क्या हुआ, बहुत सारे earthquakes आए, but we don't want it. It is common to all, so one can avoid it. But still, that is a problem. तो हम नहीं चाहते, but still that are being imposed on us. हम पे impose कर दी जाती है वो चीजें। These are miseries due to natural calamity. So the next is तो एक बार एक सर्वे किया गया तो उसमें जब सर्वे था तो उसमें ये सर्वे किया गया कि हु इज द हैप्पीएस्ट कंट्री, कौन सी कंट्री हैप्पीएस्ट है। आपको पता है सर्वे में निकल के आया द पोरेस्ट कंट्री, दैट इज बांग्लादेश, दैट इज हैप्पीएस्ट कंट्री इन द सर्वे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि दैट मींस द वेल्थ, हमें जो वेल्थ मिल रही है या कुछ भी है, दैट इज नॉट गिविंग, दैट इज गिविंग अस सेटिस्फेक्शन। हमें कुछ समय के लिए सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट स्टिल अगर आप सर्वे करेंगे तो द हैप्पीएस्ट पर्सन डज नॉट डिपेंड ऑन योर वेल्थ, आपकी वेल्थ पर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली द हैप्पीनेस लाइज within the happiness lies within। And in the last I'm going to tell you the happiness, the key of happiness, क्या actually happiness है। So this you can आप इन सब इनको जानते होंगे। She is in our previous class that was in Disha festival में हमने इनके बारे में जाना था, डायना। So she is saying, my only desire is to take birth in a poor family in the next life because I consider that I would be more happy in that situation। So she is saying like this। So we can understand that she is the most happiest princess ever। Princess, हमें लगता है अगर princess है वो तो बहुत खुश होनी चाहिए। Queen of hearts है, सबकी दिल को जीता हुआ था, but still she is what she is praying for। She is praying for a poor family in the next life because she considered that she will be happy in that situation। So that what does it mean? You can have, you know about king of pop, that is Michael Jackson। कितना अच्छा डांस करते थे वो, but still what does he saying? और उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया, and sad from the beginning, sad since it is first started, why so sad, वो इतने sad क्यों रहते थे? He said lonely, sad, having to face popularity, बहुत popularity, हर जगह जहाँ पे भी जाते थे popularity थी, सब उनको पूछ रहे हैं thank you all that, but I was used to always cry from loneliness। वो हमेशा loneliness फील करते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? पॉपुलैरिटी भी हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकती। हम तो सोचते हैं अगर मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊं, मैं भी दीपिका पादुकोण की तरह अगर थोड़ा पॉपुलर हो जाऊं या सचिन तेंदुलकर की तरह पॉपुलर हो जाऊं तो शायद मैं हैप्पी रह सकूंगी। तो मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैं मेहनत करूंगी। बट क्या माइकल जैक्सन इतना पॉपुलर होके भी इतने हैप्पी है वो?
he is saying that I feel lonely. So we can see that they are smiling faces. We can see that they are smiling, but still they have a crying hearts. So I am the greatest. कौन बोलता था ऐसे? मोहम्मद अली, a great boxer. तो क्या बोलते थे? I am the greatest. मुझसे ज़्यादा greatest कोई नहीं है. But still, जब old age आया, जब उनको disease ने घेर लिया, so he is suffering from Parkinson disease. Parkinson disease में उनको ऐसा हुआ कि he can't even lift a cup of coffee. जो कि boxer इतना लोगों को मारते थे अच्छे से, और अब क्या है? He can't even lift a cup of coffee. तो वो कॉफी का लिफ्ट नहीं कर पाते. Ronald Reagan, president. He is a president of USA. What does he say? President कितनी बड़ी पोस्ट है. काश मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, है ना. हम सोचते होंगे काश मैं भी पॉपुलर बन जाऊं. But he announces that I have been recently been told that I am afflicted with Alzheimer's disease. I now begin the journey that will take me to sunset of my life. अब क्या है? ओल्ड एज ने उनको घेर लिया है. अब डिजीजेस आ गई हैं. And now he has begun the journey that will take me into the sunset of life. 1994 की बात है. And due to receding memory, उनकी मेमोरी भी चली गई. The last he was, मतलब इतना भी उनको याद नहीं रहा कि वो प्रेसिडेंट था यूएसए के. उनको ये भी याद नहीं रहा. तो basically, what does it mean by overcoming problems? तो problems को overcome कैसे कर सकते हैं? तो problems को overcome क्यों करना है हमें? क्यों problems को overcome करना है और why? तो बोल रहे हैं कि until and unless we go to the roots of problems and adjust them there, the symptoms will not disappear. तो हमें जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि रूट क्या है प्रॉब्लम्स का. आप सोच रहे हो यार इन्होंने मतलब इतना कुछ बता दिया, इतनी प्रॉब्लम्स. यहाँ तो हम हैप्पीनेस को सर्च करने के लिए आए थे, यहाँ तो हमें ये सिखा दिया कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम तो प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं. मुझे प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जानना, वो तो मुझे पता है प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन मुझे तो हैप्पीनेस के बारे में जानना था. बट स्टिल जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि रूट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों, तब तक हम उस चीज को हैप्पीनेस को तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे. हम तो अपनी हैप्पीनेस को खुश रहने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे पास छोटी छोटी चीजों से हम कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअली में व्हाट डज इट एक्चुअली मींस, द एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है? नाउ वी विल गो टू overcoming problems. So solutions offered by scientists. आपको बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे solutions देते हैं. फिलोसफर, एथिस्ट एंड फ्रूटी वर्कर, सबका अलग अलग तरीका है सोचने का. ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स को, इन सब प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने का सबका एक अलग अलग तरीका है. So now we will move on to, and I will tell you one poem. बहुत अच्छी. So साइंटिस्ट गिव अ पैचवर्क सॉल्यूशंस. वो पैचवर्क सॉल्यूशन बोलते हैं. जैसे कि अगर आपको मतलब ओल्ड एज मुझे पसंद नहीं है, बट कॉस्मेटिक मेकअप से तो हम एजिंग को दूर भगा सकते हैं. आपने देखा होगा कोई 70 इयर्स की एक कोई महिला है, 70 इयर्स की लेडी है, वो मेकअप करने गई वहाँ पे ब्यूटी पार्लर में, और बहुत ही यंग लगने लगी. तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो मिल गया, वो तो जवान हो गई. यही तो प्रॉब्लम थी ना, ओल्ड एज आ गई है. बट स्टिल क्या उनकी बायोलॉजिकली वो ठीक हो गई है? क्या बायोलॉजिकली वो उनके हाथ जो थे या उनके पूरा बॉडी है जो अंदर से ओल्ड एज की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्या हम उन सब चीजों को ठीक कर पाए? साइंटिस्ट क्या कर पाए? सो दीज आर बेसिकली कॉस्मेटिक मेकअप फॉर एजिंग पीपल. ठीक है, कॉस्मेटिक मेकअप से वी कैन नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन. ट्रीटमेंट फॉर द डिजीजेस आई, ट्रीटमेंट कर लिया, बट क्या हम उन डिजीज को फिर हमेशा के लिए रोक पाए? क्या हमने हमेशा के लिए उसको रोक दिया कि अब नहीं आएंगे डिजीजेस? नहीं. एंटरटेनमेंट, हमें लगता है कि हम एंटरटेनमेंट से, टीवी से हम एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, बट यस फॉर सम टाइम एंटरटेनमेंट हम थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं. यहाँ पे बताया फिलोसफर्स क्या बोलते हैं? दिस शेल टू पास. प्रॉब्लम आएगी, दिस शेल टू विल पास. स्टिक विद द विनर्स के साथ रहो. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. इसमें तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही. कीप इट सिंपल स्टूपिड. मतलब स्टूपिड क्या करो, सिंपल रहो यार, सिंपल चीजों को देखो. लिव इन द नाउ, प्रेजेंट में जियो यार. किसने देखा है फ्यूचर? क्या प्रॉब्लम्स, क्यों इतना तुम झंझटों में पड़ रहे हो? लिव इन द नाउ, अभी रहो, खुश रहो, मस्ती करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को.
क्या देखा है, किसने देखा है जिंदगी में? कीप एन ओपन माइंड रखा कर यार। और इन द स्टार्टिंग ऑल्सो आई जस्ट वांट टू से, मैं भूल गई कि बिफोर स्टार्टिंग अवर स्लाइड्स आई जस्ट वांट टू से कि हम जब भी अपना कहीं कुछ समझने जाए या सीखने जाए, तो फर्स्ट टू थिंग्स वी हैव टू कीप, दैट वी हैव टू कीप एन ओपन माइंड। हमें एक ओपन माइंड रखना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग हार्ट बिकॉज क्योंकि हमें कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी शायद हमने कभी सुनी ना हो, और ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत बार सुनी हो। तो स्ट्रॉन्ग हार्ट होना चाहिए और ओपन माइंड होना चाहिए समझने के लिए। नहीं तो कभी कभी कितने लोगों को आप बताने की कोशिश करोगे, वो क्या कहेंगे, ओपन माइंड नहीं, क्लोज माइंड। नहीं, अगर ये स्पिरिचुअलिटी का कुछ है तो मैं आई विल नॉट अटेंड, सॉरी। ओपन माइंड, दे हैव नॉट ओपन द माइंड। तो उनको कैसे पता चलेगा? जब तक आप मिठाई को खाओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि वो मीठी कितनी कितनी मीठी है वो मिठाई, है ना? इसी तरीके से अगर हम कोई चीज नई चीज जानने के लिए गए हैं, so we have to keep an open mind। तो फिलोसफर्स का भी यही है एक तरीका कि keep an open mind, let's go of old ideas जो बताए गए हैं, ये दैट्स ठीक है, तो ओल्ड आइडिया है, अभी हम अपनी जिंदगी में एंजॉय करते हैं। तो फिलोसफर्स की ये सॉल्यूशंस है, ये आप सॉल्यूशंस अगर आप काम आते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छे सॉल्यूशंस हैं। एथीस्ट के सॉल्यूशंस ये होते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होते। गॉड, कुछ भी गॉड नहीं होता। तो यहाँ बोल रहे हैं द बाइबल इज मिस्टेकन इन टेलिंग अस वेयर वी केम फ्रॉम। अगर बाइबल ने यही नहीं बताया कि हम कहाँ से आए तो हम कैसे जाने कि हम कहाँ जाएंगे? इस तरीके से वो मतलब कि आपको बोलेंगे, जब अगर आप किसी एथीस्ट से मिले हो ना, जो मतलब भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, तो वो आपको इस तरीके से आर्गुमेंट्स देंगे कि आपको वो कन्विंस करेंगे कि द वे टू सी फेथ बाय इज टू शट द आई ऑफ द रीजन। फेथ क्या है? जो भी आया उसको शट कर लो, अपने आईज को बंद कर लो, चला जाएगा, प्रॉब्लम गई, क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से जो एथीस्ट होते हैं वो भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो वो कहते हैं कि जो ये स्क्रिप्चर्स हैं दे आर मिथ, वो मिथ है, कुछ भी नहीं है स्क्रिप्चर्स में, जो भी लिखा है वो माइथोलॉजी है, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। किसने लिखा है भाई, किसने देखा है? हमने तो नहीं देखा, किसने लिख दिया? ये उनके सॉल्यूशंस होते हैं। और फ्रूटिव वर्कर्स मोस्टली यही आप देखेंगे आजकल कि बहुत वी आर एंगेजिंग अवरसेल्व्स पूरे दिन, वी आर बिजी, हम लोग बिजी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम क्या है, बिजी रहकर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। कि मतलब इतने बड़े बड़े घर होते हैं लोगों के पास। क्या होता है आप देखेंगे कि आप एक एग्जाम्पल मैंने देखा था कि एक बहुत बड़ा घर है, किसी ने अपने घर मतलब इतना बड़ा घर लिया और हस्बैंड भी गए ऑफिस, वाइफ भी गई ऑफिस, और एंजॉय कौन कर रहा है? वहाँ पे जो मेड है वो उस घर में आराम से एंजॉय कर रही है। तो हैप्पीनेस किसको मिल रही है? उसमें मतलब मेड है उसको मिल रही है। तो इस तरीके से मतलब स्वेट अच्छे से पसीना बहा लिया, बिजी रहकर वी थिंक दैट वी आर हैप्पी, हम ज्यादा हैप्पी हैं, हम ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। तो अगर तो हम कभी कभार हैप्पीनेस को जानने के लिए एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, टैरो कार्ड्स, ब्लैक मैजिक भी करते हैं लोग। तो इस तरीके से क्यों करते हैं? बिकॉज टू गेट हैप्पीनेस। आई जस्ट वांट टू शेयर वन पोएम। पोएम नहीं है, छोटी सी बात है, जैसे जिससे कि व्हाट इज बेसिकली दिस लाइफ इज। लाइफ क्या है? लाइफ इज फुल ऑफ केयर वेयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टिल। हमें पास टाइम नहीं है, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep and cows। sheep and cows की जितना भी हमारे पास टाइम है, आप देखेंगे कभी रोड पे आप जा रहे हैं और आप देखेंगे कि कैसे हम लोग, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि देखो काऊ सोचती होगी कि ये लोग कितना भागते रहते हैं, उनके पास वो आराम से खड़े हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो डूइंग ईटिंग मीटिंग डिपेंडिंग एंड ईटिंग मीटिंग डिपेंडिंग मीटिंग एंड स्लीपिंग। वो आराम से खड़े और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है, हम भाग रहे हैं। वी हैव टॉलर बिल्डिंग्स बट शॉर्टर टेम्पर्स। हमारे पास शॉर्ट टेम्पर्स हैं, वी आर सो शॉर्ट टेम्पर्स। आई जस्ट वांट टू शेयर वन स्टोरी विद यू ऑल ऑफ यू। एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, कपल थे, उनके क्या था, उनके बेबी नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो अमेरिका गए एंड दे उनका टेस्ट ट्यूब से उन्होंने एक बेबी प्रोड्यूस किया और बहुत छोटा सा था, 2 साल का बेबी था। तो हस्बैंड और वाइफ में आजकल जैसे बताया है कि वी हैव टॉलर बिल्डिंग्स बट शॉर्टर टेम्पर्स। टेम्पर बहुत शॉर्ट है। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद
क्या जो हस्बैंड था इतना गुस्सा चढ़ गया, इतना गुस्सा चढ़ गया कि उसने उस बच्चे को ऐसे उल्टा लटकाया, और ये न्यूज में आया था। ठीक है, तो उसको बाहर ऐसे, बाहर मतलब खिड़की से बाहर उसको ऐसे करके बच्चे को उल्टा लटका दिया, और बोला कि अगर तुमने मुझे कुछ कहा ना तो मैं इसको गिर दूंगा। तो वाइफ ने बोला कि जाओ जाओ, तुम क्या कर दो, क्या ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? तो उसने क्या किया, गुस्से में ना उस बच्चे को, कि अपनी भी एक प्रेस्टीज होती है, अपनी भी एक ईगो होती है, तो उसने उस बच्चे को नीचे गिर दिया। और जब वो नीचे गिर दिया तो जो वाइफ थी उसको बहुत दुख लगा, वो एकदम से भाग कर गई नीचे कि मतलब बच्चे को देखने। देन ही सी 2 डेड बॉडीज, उसने 2 डेड बॉडीज को देखा, वन वाज बच्चा एंड अदर वाज हिज हस्बैंड। हस्बैंड को बाद में बहुत फील हुआ कि मैंने इतना गुस्सा क्यों किया, और वो वहां से उसने छलांग मार दी। तो और आपको पता है कि उसके सामने एक बिल्डिंग थी, सामने ही बिल्कुल उसके वहां पे एक ओल्ड एज का एक अंकल थे, उन्होंने देखा उन दोनों को ऐसे गिरते हुए, एंड ही गॉट हार्ट अटैक, उनको हार्ट अटैक आ गया उसको देखकर, ही आल्सो गेट डाइड वन एंगर की वजह से, थी डेथ। तो इससे बोलते हैं कि एंगर जो है इज वन स्टेप, वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। डेंजर से वन, डेंजर में आप डी हटा दोगे तो एंगर, तो डेंजर है ये एक्चुअली। सो एंगर को, ये मैं पिछले पोयम बता रही थी। So we have taller buildings but shorter tempers, wider freeways but narrower viewpoints। हमारे पास बहुत सारी freeways है, हम सोच सकते हैं बड़ा फ्री है हमारे पास बहुत सारे वेज, बट नैरोअर व्यू पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स हमारे बहुत नैरोअर है। वी स्पेंड मोर बट हैव लेस, वी बाय मोर बट एंजॉय इट लेस, बिकॉज प्रैक्टिकली वी हैव नो टाइम। वी बाय मोर, उसने बहुत बड़ा घर खरीदा, बट ही, शी एंड ही, जो उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो उसको एंजॉय कर सके। बिगर हाउसेस, स्मॉल फैमिलीज, more convenience, less time, more degrees, but less common sense, more knowledge, less judgment, more experts, but less solutions, more medicines, but less wellness, multiplied possessions, reduced values। possessions तो बहुत है, multiply कर लिया, लेकिन values नहीं है। We talk too much, love too seldom, but hate too often। That means बहुत ज्यादा बोलते हैं, प्यार थोड़ा ही करते हैं, लेकिन हेट बहुत ज्यादा करते हैं। We learned how to make a living, but not a life। We have added years to life। हमने अपनी, we have added years to life, but not life to years। मतलब quality of life जो है वो हमारा decrease हो गया है। We have conquered outer space। हमने conquer कर लिया outer space, हमने ये ले लिया, हमने वो ले लिया, but we have not conquered inner space। We have cleaned up the air, but polluted the soul। We have a long on quantity, but short on quality। We have fancier houses, but broken homes। You can see that we have fancier houses। You can, आप देखते होंगे in America or in very advanced countries like देखते हैं कि वहाँ पे divorce rate बहुत ज्यादा होता है। They have fancier houses, बहुत अच्छे अच्छे घर हैं उनके पास, बहुत अच्छी अच्छी facilities हैं, technology wise they are best, but still divorce rate इतने ज्यादा है that they have broken homes। homes नहीं, घर नहीं बने। 60% ऑफ लोग क्या लिविंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं बाहर। तो बट सो हमने तो ये देखा कि एक्चुअली में क्या मतलब ये है, फ्रूटी वर्कर कैसे सोल्यूशन बताते हैं। फ्रूटी वर्कर आपको बताएंगे एस्ट्रोलॉजी के पास जो जेम्स, जेम्स की भाई अंगूठी पहन लो, आप इस वाले जेम की अंगूठी पहन लो, या ब्लैक मैजिक कर लो, या टैरोट कार्ड से। हम लोग को सोचते हैं फ्रूटी वर्कर ऐसे सोल्यूशन बताते हैं, बट साइंटिस्ट गिव टेम्परेरी सोल्यूशन। जो साइंटिस्ट है वो टेम्परेरी सोल्यूशन देते हैं, एंड व्हिच बिकम्स न्यू प्रॉब्लम्स। साइंटिस्ट ने हमें दिया कि बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई, बहुत टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छा है, बट वी आर नॉट सेइंग दैट दे आर बैड, वो बैड नहीं है, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। उससे हमारी न्यू प्रॉब्लम भी अराइज हो गई, लाइक एयर पोल्यूशन बढ़ गया, इंडस्ट्रियल रिलेटेड स्ट्रेस बढ़ गया, इंक्रीजिंगली डिस्ट्रक्टिव वार्स। बहुत ज्यादा हमने ऐसे ऐसे बम बनाए जिससे एक ही बारे में हम फेंकेंगे जैसे, तो हमारी पूरी जो कंट्री है ना वो पूरी तबाह हो जाएगी, पूरी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो क्या किया, हैप्पीनेस के लिए किया कि अगर हम पे कोई, हम डिफेंडिंग के लिए किया
कि हम पे अगर कोई वॉर करेगा तो हम इस तरीके से बम गिराएंगे और सारा तोड़ देंगे, उसको पूरा खत्म कर देंगे। साइंटिस्ट गिव सॉल्यूशंस व्हिच बिकम्स न्यू प्रॉब्लम। उससे क्या होगा, लड़ाई होगी वो, और फिर आपको फिर से डिफेंड करेंगे वो लोग। फेटल डिजीजेस लाइक सार्स, जिस तरीके से एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये जो क्यों ये कोरोना वायरस जो आया, इट इज आल्सो फेटल डिजीजेस लाइक सार्स। सार्स भी एक तरीके से 2002 में डिजीज थी दैट वाज रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज क्या था, जिस लाइक कोरोना वायरस के आप छींक मारते थे तो आपकी ड्रॉपलेट से रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती थी, फैलती थी, कम्युनिकेबल डिजीज थी। तो इस तरीके से ये जो हम इतना एडवांसमेंट आ गई है हम सब में, लेकिन उससे डिजीजेस भी बढ़ रही हैं। मोबाइल से इतना एडिक्ट हो गए हैं, वाटर पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। तो दे आर गिविंग द सॉल्यूशंस दैट आर राइजिंग टू न्यू प्रॉब्लम। So scientists give solution which can result in only better sense gratification. एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, मतलब I just want to share with all of you, मैं शेयर करना चाहूंगी, बट ऐसे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप कभी भी इसको सर्च भी कर सकते हैं। Scientists give solution which can result in only sense gratification, better sense gratification हो जाती है। Sense gratification means क्या होता है, to satisfy our senses, हम अपनी satisfy करते हैं। There are 5 senses, जो main senses आपकी हैं वो है we feel happiness through these 5 senses। एक तो है eyes से हम happiness feel करते हैं, ठीक है। कुछ मूवी देख ली अच्छी सी तो उससे क्या हमें happiness मिली, ठीक है। तो eyes, ears, बहुत अच्छा सा सूदिंग सा म्यूजिक सुना and I feel so happy, solution। थर्ड इज nose, अच्छा सूंघा, बहुत अच्छा सूंघा, स्मेल किया तो उससे क्या हुआ, बहुत अच्छा मतलब लगा, हैप्पीनेस मिली मुझे, बहुत अच्छा लगा। फोर्थ इज टच, टच मतलब कुछ भी सॉफ्ट अगर हम टच करते हैं या कुछ भी अच्छा टच करते हैं तो अच्छा लगता है, टच, ठीक है। तो मतलब स्किन से, तो एक हमने। और थर्ड फिफ्थ इज बाय टंग, कुछ अच्छा खा लेते हैं ना, बहुत टेस्टी सा, मम्मी ने बहुत अच्छी मैक्रोनी बना दी आज, वाओ मजा आ गया। तो क्या हुआ, बेटर सेंस ग्रेटिफिकेशन हुई, हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गई। लेकिन क्या हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिल गया उससे, तो दैट इज द अवर टॉपिक। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन इज पेनफुल, like the two sides of coin। Material pleasure brings material pain free of cost, it is a package deal। आप जैसे बहुत जैसे मतलब आपने मैक्रोनी खाई, बहुत इतनी अच्छी लगी कि हमने इतनी सारी खा ली और क्या हुआ, उसके बाद पेट खराब हो गया। तो कभी कभार क्या होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन अगर हम ओवर कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, इट इज पेनफुल फॉर अस, ठीक है। तो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें मतलब ये हमें अच्छा लगेगा लेकिन बट स्टिल इट इज अ पेन। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज एडिक्टिव, एक बार कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन करने लग जाए, एडिक्टिव, इतनी ज्यादा एडिक्शन हो जाती है उस चीज से कि मतलब उससे बाहर निकलना। किसी आप स्मोकर से बोलो कि आप स्मोकिंग छोड़ दो तो क्या कहेगा कि आई कैन नॉट, आप उसको धीरे धीरे करके आप उसको ला सकते हो। बट सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, एडिक्टिव है, ठीक है। सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो स्मोकिंग कर रहा है या इंटॉक्सिकेशन ले रहा है, टंग को अपने टेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसको एडिक्टिव, इतना एडिक्टिव हो जाएगा कि उसको छोड़ नहीं पाएगा, उसके प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सेंस स्मोकिंग से क्या है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि साइंटिस्ट गिव सॉल्यूशंस व्हिच अराइज टू न्यू प्रॉब्लम्स, तो उससे क्या न्यू प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, ठीक है। और एक स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है कि हाउ सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेंसेस कैन नॉट गिव रियल हैप्पीनेस। अब आपको 5 तरह के ना वो बताए जाते हैं, क्या कहते हैं, 5 तरह के बोलते हैं ना क्रिएचर्स, पतंग, मातंग, कुरंग, भीरंग और मीन। इससे बताया जाता है कि हाउ दे आर यूजिंग देयर 5 सेंसेस, वो अपने 5 सेंसेस को यूज कर रहे हैं एंड उन सेंसेस को यूज करके कोई सेंस को यूज करके और वो उनकी डेथ आ जाती है। कैसे, अब हम एक बार करते हैं डिस्कस, ये नहीं है ओवर। अब ये तो एग्जांपल है एक और, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज एडिक्टिव, बहुत टीवी देख लिया, इतना एडिक्शन हो गया, एक तो आंखें भी खराब हो गई और एडिक्शन इसका इतना है टीवी का कि हम खत्म नहीं।
अब है इज रिस्की। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 5 तरह की जो मैंने एनिमल्स बताए या कुछ क्रिएचर्स बताए, उनमें से एक है मीन। मीन मतलब मछली या फिश। फिश क्या करती है, अपने टंग का सेंस यूज करती है। मतलब जैसे आप देखते होंगे कि एक जो फिशर जो उसको मतलब पकड़ रहा है, जो भी मतलब इसे जाल फेंकता है, तो उसके अंदर क्या ऐसे हुक होता है, वो हुक को ऐसे खा लेती है और उसको पूरा निगल जाती है, पूरा अंदर तक एंगल्फ कर जाती है, और उसके बाद उसको वो खींच लेता है। तो किस चीज के लिए गई थी वो, अपने टंग की सेंसेस, टंग को सेटिस्फाई करने के लिए गई थी, बट वो क्या पकड़ी गई और उसकी मृत्यु आ गई, डेथ आ गई। तो ये रिस्की भी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाज मीन फिश, जो यूज कर रही है अपनी टंग। नाउ द नेक्स्ट इज मॉथ। मॉथ मतलब आप बोल सकते हैं भीरंग। भीरंग या मतलब बोल सकते हैं पतंग, सॉरी पतंग बोलेंगे इसको। पतंग मतलब फायर बॉम्ब। फायर बॉम्ब देखेंगे कि एक आप देखेंगे कैंडल होती है ना, कैंडल, उसके ऊपर इतनी गर्मी होती है ना, तो बट जो फायर बॉम्ब होती है ना, मॉथ भी बोलते हैं, वो ना क्या करती है, उसकी आंखों से ना वो इतना अट्रैक्ट हो जाती है ना उस फायर से, उसकी लाइट से इतनी अट्रैक्ट हो जाती है कि वो उसके पास जाती जाती है, पास जाती जाती है। और जब वो पास चली जाती है तो वो इतनी गर्मी उसके ऊपर आती है कि एकदम से वो उसको पकड़ लेता है और उसको मार देता है, ठीक है। मतलब फायर के अंदर वो मर जाती है। तो इसका मतलब उसने कौन सी सेंस यूज करी थी अपनी, उसने यूज करी अपनी आइज। तो उससे क्या हो गया, सेंस ग्रेटिफिकेशन उसकी रिस्की है, उसका अपनी लाइफ जीने पर लूजेस इट्स लाइफ। लाइक एलिफेंट। अभी थर्ड है, बोलेंगे इसको मातंग। मातंग मीन्स एलिफेंट बाय द सेंस ऑफ टच। अभी हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वाज मीन, कौन सा सेंस यूज किया था उसने, यूज्ड हिज इट्स टंग। सेकंड वाज मॉथ। मॉथ हमने यूज किया, पतंग जिसको बोला, वो उसने आईज यूज करी और वो फंस गया, सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंस गया। एलिफेंट, एलिफेंट क्या करता है कि उसने वैसे यहाँ पे सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ टच से वो फंस गया। एक्चुअली वो क्या है, रनिंग कर रहा है। क्या करते हैं, कैसे उसको ट्रैक करते हैं कि एक जो एलिफेंट, शी एलिफेंट होती है ना, शी एलिफेंट, उसको भगाते हैं पहले। तो वो क्या करता है कि वो उसके पीछे 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 भागता है और सेंस ऑफ टच उसको मतलब टच करता रहता है अपनी जमीन को। तो वो क्या होता है, उसके जब जमीन पे क्या उन्होंने गड्ढा कर रखा होता है, जैसे डिच फिट किया होता है, उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे पत्ते गिरे होते हैं, वो तो ऐसे निकल जाती है, लेकिन वो क्या उसमें फंस जाता है। तो एक तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन रिस्की है, और वो अपना टच से ही मतलब टच भी फील नहीं कर पाया और वो गिर गया, उसके अंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन रिस्की है। नेक्स्ट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन इज इल्यूशनरी। बट तो पहले हम एक और चीज करेंगे कि हमने 5 देखे थे, एक तो पतंग, एक मातंग, मातंग मीन्स एलिफेंट, थर्ड वन इज कुरंग, कुरंग इज डियर। डियर आपने देखा होगा, कोई फ्लूट बजाता है ना, बहुत अच्छी आवाज आती है, तो उसके पीछे 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 भागता चला जाता है, भागता चला जाता है। तो वो अपने ईयर्स से अट्रैक्ट हो गया, वो उससे क्या हुआ, ईयर्स से अट्रैक्ट हो गया और वो फंस गया जाता है, और उसको जो ट्रैपर है उसको पकड़ लेते हैं और उसको बंदी बना देते हैं। तो और नेक्स्ट वन इज बीरंग। बीरंग होता है बम्बल बी। आपने देखा होगा बम्बल बीज जो होती है, उनके अंदर इतनी ताकत होती है ना कि अब वो एक मतलब वुड में भी ना छेद कर सकती है, वो इतनी ज्यादा उनके अंदर ताकत होती है। बट जब वो लोटस के अंदर ऐसे जाती है, लोटस के अंदर, तो लोटस के अंदर उसमें इतना ज्यादा एडिक्शन हो जाता है, उसको इतना ज्यादा एडिक्शन हो जाता है कि इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, सूंघती है उसकी स्मेल से, कि उसकी स्मेल इतनी अच्छी लगती है लोटस की कि उसकी स्मेल से वो इतना इंटॉक्सिकेटेड हो जाती है कि वो आप इंटॉक्सिकेटेड हो जाती है। और रात को आपको पता है लोटस अपने आप को ऐसे बंद कर लेता है, तो ऐसे था, लेकिन रात को ऐसे बंद किया। इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि वो वहां से हिल नहीं पाती, और नेक्स्ट डे जब वो अपने आप को ऐसे खोलता है ना, तो वो मरा हुआ निकलता है, बम्बल भी। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो उसको आराम से लोटस को ऐसे पार करके जा सकता था, लेकिन बट वो अपनी इंटॉक्सिकेशन इतनी ज्यादा हो गई उसको कि वो उसमें से भी निकल नहीं पाया। Sense gratification is illusionary. Sense gratification is risky. We have discussed sense gratification is risky. Now the next is sense gratification is illusory. मतलब डोंकी जो है वर्किंग हार्ड, उसको क्या लगता है
कि अब मुझे अब इसके बाद बहुत सारी ग्रास मिलेगी और सिंपली फॉर ग्रास के लिए वो इतना पूरा दिन काम करता रहता है गधे जैसे बोलते हैं ना, गधे की तरह तुम काम करते रहते हो पूरा दिन। तो इसका मतलब विदाउट एनी, हमें पता ही नहीं इससे हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, फिर स्टिल वी आर डूइंग हार्ड लाइक अ मोंकी, तो वर्किंग इल्यूजन में रहते हैं। अरे इससे पता है क्या, मैं बहुत पैसे कमाऊंगी, उसके बाद मैं एक बढ़िया सी गाड़ी लूंगी, उसके बाद एक बढ़िया सा घर लूंगी। हम ये सोच रहे थे, वी यूज्ड टू प्लान फॉर द फ्यूचर। बट क्या होता है कि ऐसा कभी प्लानिंग जो हम करते हैं वो कभी एक्चुअली में होता ही नहीं है, या कभी होता है तो हमें सेटिस्फाई नहीं करता, उसके साथ हमारी 10 प्रॉब्लम भी साथ साथ आ जाती हैं। तो इल्यूजन में रहते हैं। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन इज स्टेल। स्टेल मीन्स जैसे खराब चीज होती है ना, खराब। तो पीपल चूइंग द चू, बार बार सेम चीज। हम जैसे आपने देखा होगा बबल गम को बार बार खाते रहते चूइंग द च्यूट। तो इसी तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन इज स्टेल, मतलब सभी कर रहे हैं, सभी सेम कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है अरे इससे तो बहुत हैप्पीनेस मिल रहा है, बट वी आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग्स दैट ऑल आर डूइंग, but still we are not getting happiness that they are also not getting. So we are chewing gum, है ना? So सेंस ग्रेटिफिकेशन फ्रस्ट्रेटिंग। आप देखेंगे कभी हम किसी और कुछ भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं ना, तो इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है उससे कि उसके बाद हम अपने आप को मतलब से यहाँ पे दिखाया कि अपने आप को उसने मारने की कोशिश करी है। तो मतलब जैसे कि आप या तो एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि कभी कभी टीवी देख रहे हैं तो इतना ज्यादा देख लिया कि उसने हमें इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, या मोबाइल पे लगे हैं पूरा दिन मोबाइल देखा, सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्या हमें उस समय तो खुशी मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। ऐसे तो इसका मतलब मोबाइल फोन्स, टीवी या कोई भी ऐसी चीज हमें हमेशा के लिए हैप्पीनेस नहीं देती, वो हमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट कर देती है। तो हमारे लोअरिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट्स, इसका मतलब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है हमें मतलब डिस्कम्फर्ट्स को, लोअरिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट्स, जैसे कि मतलब कि मम्मी जैसे है हमें, वो हमें जैसे लोअरिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट्स मतलब जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है हमारी, जैसे हमारी कभी डिस्कम्फर्ट आती है तो हम उससे मतलब हमें वो अच्छी नहीं लगती वो चीज। ये बताया गया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लोअरिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, जैसे हमें उस सेंस ग्रेटिफिकेशन में डिस्कम्फर्ट आती है हम उस चीज को छोड़ देते हैं। तो जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज अनसेटिस्फैक्टरी। आपने देखा होगा कि आपने एक जैसे डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स क्या करते हैं, वो चलते रहते हैं, गर्मी है बहुत गर्मी है, चलते रहते हैं। बट उनको क्या लगता है, मिराज आपने देखा होगा, मिराज साइंस में पढ़ा होगा 9th या 8th क्लास में, कि उनको लगता है कि अरे आगे आगे ना पानी है आगे, तो वो क्या दौड़ के जाते हैं, फिर आगे देखते हैं उसमें एकदम से डुबकी लगाते हैं, डाइव करते हैं उसके अंदर, और देखते हैं कि उसमें पानी नहीं था, वो और ज्यादा गर्म मिट्टी उन्होंने खा ली एकदम से। तो इसका मतलब आगे जाते हैं तो अनसेटिस्फैक्ट्री है। इस तरीके से एग्जांपल इट इज एग्जांपल, तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देती, हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमें लगता है इसमें बहुत मजा आएगा, या कॉलेज में हम मतलब बहुत एंजॉय करेंगे या फ्रेंड्स बनाएंगे, तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री है। कुछ देर के लिए सेटिस्फेक्शन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी भी हमें सेटिस्फेक्शन देती है, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के वी आर अगेंस्ट, हम अगेंस्ट नहीं है। जैसे कि वी आर यूजिंग लैपटॉप्स, हम सब कुछ यूज कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा यूज कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, हमें अनसेटिस्फेक्शन देते हैं। क्या हमें एक्चुअली में अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट? सेंस ग्रेटिफिकेशन इज अनसेटिस्फैक्टरी। सो वी हैव लर्नड अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है पेनफुल है, इट इज एडिक्टिव, इट इज रिस्की, इट इज illusory, it is stale, it is frustrating, it is loading of discomforts, and it is unsatisfactory. अभी तो हमने देखा कि कितना मतलब हैप्पीनेस के कितनी प्रॉब्लम्स के बारे में समझा, तो बट क्या मैं एक्चुअली में हैप्पीनेस क्या है? तो ऑलवेज ऑन राइज। क्या आप देखते होंगे आजकल जितना हमारा एडवांसमेंट होता जा रहा है, वायलेंस उतना बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है, मर्डर भी बढ़ रहे हैं, साइड रेट भी बढ़ रहे हैं, करप्शन भी उतना ज्यादा हो गया है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, रेप्स, डाइवोर्स रेट भी बहुत बढ़ रहे हैं। वी आर एडवांस सो टेक्नोलॉजिकली, हम बहुत एडवांस्ड है, वी आर हैप्पी, बट स्टिल इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर आ गया साथ में। जैसे साइंटिस्ट
give solutions. They are giving solutions, but that rises to new problems that are violence, murder, suicide, rape, mental stress, corruption, unemployment, divorce rates are increasing. ड्रग एडिक्शन आजकल ड्रग का बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ड्रग्स क्यों लेते हैं लोग? फॉर सम टाइम हैप्पीनेस, कुछ समय की हैप्पीनेस के लिए वो लोग ड्रग्स लेते हैं, एंड देन दे गेट एडिक्टेड टू दैट. उसको छोड़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. So what does actually true happiness lies? So true happiness क्या है actually में? हमने इतनी problems जानी. True happiness lies in finding the true cause of problem. Cause क्या है हमारे problems का? वो हमारा, हम जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि अल्टीमेट गोल, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने जाना था कि सर्च फॉर हैप्पीनेस, हमें क्यों इंक्वायर क्यों करना चाहिए, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? फॉर टू थिंग्स. अगर आप इंक्वायर कर रहे हो, अगर यू आर बीन गिवन इंटेलिजेंस, आपको इंटेलिजेंस दी गई है, सो कैन आई फाइंड परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स? क्या सच में कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा? क्या इज इट पॉसिबल टू हैव एटर्नल लाइफ? क्या ऐसी भी कोई लाइफ है कि जहाँ पे हमें कोई एटर्नल लाइफ मिलेगी, जहाँ पे ऐसे कोई दुख नहीं हो, हमेशा अच्छा ही रहे, या हमें मतलब बिल्कुल हम खुश रहे? तो क्या ऐसी लाइफ एग्जिस्ट करती है? तो जो इंक्वायर करता है ना, ऐसे इंक्वायर करता है, उसको हम बोलते हैं वो कृपण नहीं है, वो कृपण नहीं होता. लेकिन जो इंक्वायरी नहीं करता, सेम लाइफ सब जी रहे हैं, हम भी जिएंगे, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो उससे क्या होगा? हम इंक्वायरी नहीं कर रहे. सो वी आर बीइंग गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस. हमें इंटेलिजेंस दी गई है और वी आर बीइंग गिफ्टेड विद इट, और वी आर नॉट यूजिंग दैट, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे. तो वो we are sophisticated animals. So this session is basically about that we have to inquire about the cause of the problems. क्यों आता है? So that's why our next topic is who is God. अगर किसी ने इतनी problems, कोई कहता ना ऊपर वाले काहे को दुनिया बनाई, आपने शायद गाना सुना होगा, कहते हैं, I don't remember that, काहे को दुनिया बनाई, ऐसे करके गाना होता है कि तुमने इतने, भगवान ऐसे कोई तो होगा कि इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स डाल दी, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीजेस, सब कुछ डाल दिया, साथ में आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश, और आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश, और ऐसे सारे इतने 3 तरह के कलेश डाल दिए. तो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों बनाई? अगर ये मटेरियल वर्ल्ड बनाना ही था तो इतनी प्रॉब्लम्स साथ में क्यों फिक्स फ्री में दे दी? तो इसके मतलब कि कौन है इसका क्रिएटर, कौन इतनी सारी प्रॉब्लम्स डाल रहा है? तो that's why we have to move on to our next session, that is who had made these worlds. किसने बनाया ये वर्ल्ड को? काहे को दुनिया बनाई? कौन, किसने बनाई? So why you have made this? This is our next session. Who is God? Who is God and why He has done this? क्यों ऐसा किया? And generally the tendency of mind is to not see the reality. हमारी टेंडेंसी होती है कि हम रियलिटी को ना जानना नहीं चाहते. हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे क्या होगा? बट देयर इज अ वे. अगर उसका कोई वे आउट है तो व्हाई नॉट टू सी द कॉज? क्यों ना उसके कॉज के बारे में जाना जाए? अगर हमें पता है कि उसका कोई कॉज है, उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, तो क्यों नहीं हम उसको ठीक करने का प्रयास करें? हमें पता है कि प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, तो क्यों नहीं करें? And I want to add one thing, that if we are searching for happiness, everyone is searching for happiness, and truly I just request you, or I just आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी. In the last, I want to tell you one thing, that everyone is searching for happiness in this world, and your search for happiness will end when you find Krishna. जब आप, ये बट हमारा next topic है, but and this topic, I want to add this: the search of happiness will end when you will find Krishna. जब आप उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, then you will get true happiness. So next the session is true happiness. Who is God? Who is God? अगर हमें happiness का cause जानना है तो हमें अपने next session को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि किसने बनाई ये दुनिया जिसमें इतना दुख है, क्या, कैसे हम उनको जाने. तो
I just want to thank you all of you to give your precious time that you have. सबसे चीज बड़ी चीज होती है दुनिया में टाइम देना, और you have all have given your precious time. I am very thankful for that. Please आप ऐसे ही बने रहें. Please stay tuned for the next session, who is God, and then you will get to know that who actually who has made this world, and then you will know one God or many gods. इस तरीके से हम अपने सेशंस में आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे. एंड दीज सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात बताना है कि these sessions, हम जो सेशंस कर रहे हैं उससे क्या होगा. एक्चुअली these session will help you to improve the quality of your life, the quality of your thinking. You will not be duality. अब duality से बच पाएंगे इस दुनिया की. क्या है एक्चुअली में कॉज, क्या है इतनी प्रॉब्लम्स आती है, तो ठीक है, तो हम इस ठीक है हमें पता चल गया ये कॉजेस है, तो इससे कैसे निकल सकते हैं हम बाहर. तो we will learn about in the next sessions. Okay? So stay tuned for the next session. Thank you so much. Hare Krishna. If you have any question, you can ask. If you have any question, then you can ask me. Any senior devotee will answer. Tanu Sharma has raised her hand. Do you want to ask any question, Tanu? किसी का कुछ भी प्रश्न है, किसी का क्वेश्चन है, या किसी को परेशानी है, मुझसे मैंने कुछ गलत बोला, तो यू कैन करेक्ट मी आल्सो. आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि आप इस चीज में गलत हैं. देन आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज दैट. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट, बिकॉज ऑल आर लर्निंग इन दिस वर्ल्ड. एंड so if any doubt you have, if any comments you want to, I have one question. Okay, Kashish, you can ask. If you have any question, then you can ask. क्या वो अपना अनम्यूट कर सकती है? कई बार हमें अपनी प्रॉब्लम्स के कॉज पता नहीं होते, तो कैसे पता करें? कई बार हमें अपनी प्रॉब्लम्स के कॉज नहीं पता होते. लाइक कैन यू टेल मी सम प्रॉब्लम जिसका आपको कॉज नहीं पता? हर किसी प्रॉब्लम का, जैसे कोई एक डोर है ना, तो जैसे आप, मैं बताना चाहूंगी आपको कि कई बार हमें अपनी प्रॉब्लम्स की कॉज नहीं पता होते. हाँ, जैसे कि भगवान ने ना इस वर्ल्ड को इस तरीके से बनाया है कि जैसे एक दरवाजा खुलता है तो उसका दूसरा दरवाजा आपका, मतलब एक बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है. तो इसी तरीके से कई बार हमें अपनी प्रॉब्लम्स के कॉज पता नहीं होते, तो हम कैसे पता करें? तो वी कैन एक्चुअली, ये जो हमें एक इतना अच्छा एसोसिएशन मिला है DYS के थ्रू, या हम ऐसे एसोसिएशन में रहे, जिन सीनियर्स के एसोसिएशन में रहे, डिवोटीज के एसोसिएशन में रहे, या किसी ऐसे के एसोसिएशन में रहे जिससे हम अपनी बात को डिस्कस कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके. जब आप उनसे शेयर करेंगे, उनको बताएंगे, तो आपको वो इस तरीके से गाइड करेंगे. दैट्स व्हाई दिस, मतलब एक हमें ये एसोसिएशन जो मिला है ना, यू आर सो मच, एवरीवन ऑफ यू आर सो फॉर्चुनेट दैट कि हमें इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जानने को मिला है, उनकी पुस्तकें पढ़ने को मिला है. एंड रियली हर किसी प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ कॉज तो होता ही है. तो हमें अपने सीनियर्स से, वैष्णवों से, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स से, ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए जिनसे हम अपना दिल या हार्ट शेयर कर सके. देन वी विल बी गाइडेड. जैसे कई बार हम बहुत स्ट्रेस होते हैं और हमें पता नहीं चल रहा कि क्या प्रॉब्लम है, तो कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर है. जो प्रॉब्लम्स बेसिकली होती हैं, या तो वो मेंटली हमें स्ट्रेस, मेंटली हम मेंटल परेशान हैं, ठीक है,
पर हमें हर किसी को ना पता होता है कि हम क्यों परेशान हैं। जैसे अगर कभी कभार हम वी आर इन स्ट्रेस, हमें बहुत ज्यादा टेंशन है, क्यों? बिकॉज एग्जाम्स चल रहे हैं। हर किसी को पता होता है कि मैं इस वजह से स्ट्रेस में हूँ। ट्राई टू उस स्ट्रेस की जो कॉज है उसको अपनी जिंदगी से अगर हम थोड़ा सा निकालने का प्रयास करेंगे, या हम जैसे किसी ऐसी चीज में, जैसे ऐसे लोगों से एसोसिएट करेंगे जो हमें गाइड कर सके, या उनके साथ हमें रहकर अच्छा लगे, तो हम अपनी उस टेंशन से, एंग्जाइटी से, उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और आपको पता है, प्रॉब्लम्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब शायद वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो किसी और की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट वो एक्चुअली रियल प्रॉब्लम नहीं है हमारी, वो सिर्फ आपकी या किसी और की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं व्हेन वी आर बीइंग गाइडेड विद द हेल्प ऑफ सम सीनियर्स और सम फ्रेंड्स, और हमें कुछ ऐसा करें जो हमें इतना अच्छा लगता है ना कि हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ पाएंगे कुछ समय के लिए। जैसे बहुत हम देखते हैं कि कितनी बार हम कितने परेशान होते हैं, या कुछ घर में ऐसी कोई चीज हो जाती है, तो हम कैसे, कई लोग अपनी प्रॉब्लम से बाहर कैसे आते हैं? वो या तो म्यूजिक सुनते हैं, या कुछ पढ़ लेते हैं, या तो कुछ फ्रेंड से टॉक कर लेते हैं, या टीवी देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ऐसा कोई फ्रेंड रखना चाहिए, या ऐसे कोई सीनियर्स रखने चाहिए जिनसे हम अपनी बात डिस्कस कर सके, हम जिनको अपने बारे में बता सके, तो हमें गाइड करेंगे अच्छे से। ठीक है, आई होप कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिससे आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा, तो हैव अ फ्रेंड इन योर लाइफ, हैव सच एन एसोसिएशन इन योर लाइफ व्हिच विल हेल्प यू। श्रीला प्रभुपाद बुक्स, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं व्हिच विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम दैट एंजाइटी, फ्रॉम दैट स्ट्रेस, दैट यू आर एबल टू बाहर आ सकते हो उस चीज़ से। ठीक है, तो इफ आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट, देन nothing. If you want to ask any other question, then you are welcome for that. I will try to answer that. So, anyone has a problem, has a doubt? किसी का भी कुछ doubt है? Any comment you want to say? या कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगा, मेरी कोई बात बुरी लगी या कुछ भी, then you can write. Thank you for attending this session. I just want to thank you for giving your precious time. So can we end here? If you don't have any question. For those who have not filled the form, kindly fill. Blessing is saying to all of you. So thank you so much, Nirmala Mataji, for this wonderful session, and thank you everyone for joining the session. And also, I would like to ask you one question now, everyone, those who have attended the session. The question which I asked in the beginning, like dash plus life equal to happiness. So I think everyone is aware of that answer now. Okay, what will come in that dash? So you can let us know in the chat. True that. So everyone is giving the correct answer. So yes, Krishna plus life is equal to happiness. So add Krishna in your life and you will be happy forever. Thank you so much, everyone. Thank you so much for the session. Thank you, Nimala Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.